स्टार का मैनेजमेंट। कंपनी देश की जानी मानी एसी और कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में कूलिंग प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज है, लेकिन इस साल मॉनसून वक्त से पहले आने से एसी की बिक्री पर असर दिखा है। ग्रोथ को लेकर आगे की क्या योजनाएं हैं, टैरिफ की वजह से इनपुट लागत पर कितना असर दिखा है, चर्चा के लिए हमारे साथ ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन जुड़ गए हैं। सर आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए यहाँ पर मॉनसून का जो इम्पैक्ट है वो सेल्स पर हम पड़ता हुआ देखेंगे और शुरुआत हम उसी के हिसाब से करेंगे। किस तरह का प्रोडक्शन कट है, आपकी ग्रोथ रेट किस तरह से आपने एम की हुई है, सेल्स को लेकर अब आपके नए टारगेट्स क्या है, डिसअपॉइंटमेंट कितनी होगी अर्ली मॉनसून की, इन सब पैरामीटर्स पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। और सबसे पहले जो हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है अर्ली मॉनसून्स का, आरएसी सेल्स और चैनल इन्वेंट्री लेवल्स अगर मैं जानना चाहूँ Q1 FY26 के लिहाज से अर्ली मॉनसून को ध्यान में रखते हुए क्या अपडेट है सर? त्यागराजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाय सर, कैन यू हियर मी? Mr. Tyagarajan, can you hear me? Yes, I can hear you. Should I repeat the question to you, sir? No, sorry if I have missed you because the line there should have been a problem. Not a problem. Not a problem. Yeah. Not a problem. I will repeat the question, sir. So, जो चर्चा हम करने वाले हैं सर, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां पर हम प्री मॉनसून सेल्स का जो इम्पैक्ट है उस पर बातचीत करेंगे आपसे। ग्रोथ के आंकड़े आपके क्या हैं, क्योंकि अप्रैल में थोड़ा सा सेल्स में डिप देखा था, उस पर हमारा पहलू रहेगा। इसके साथ साथ ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो है आपकी अब इस पूरे नए फाइनेंशियल ईयर से वो जानना चाहेंगे, और किस तरह से अब रीजन वाइज हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मॉनसून को और उस पर आपका इम्पैक्ट क्या होगा जानेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही था कि अर्ली मॉनसून का इम्पैक्ट Q1 FY26 के आरएसी सेल्स और चैनल इन्वेंट्री लेवल्स अगर आप हमें बता सके। Good afternoon. It's a pleasure interacting with you. See, we are on a silent period, so nothing new I am going to be talking about. But it has been in the public domain. I have shared on behalf of Blue Star, on behalf of the industry, that all of us prepared for a huge summer season with over 25% growth for the period April to June. But we know from April onwards, it had been raining across the country. The summer was not severe at all, barring a few pockets. So therefore, it is one of those summer seasons where the growth did not take place. That is there very well in the public domain. Even in the month of May or June beginning, we have shared that. Now, whenever there is a season like this, when summer is not happening, I have seen the rest of the period it works well. The festival season and the build up to the next summer, eventually the full year growth will still be 10 to 15%. That's how we have seen in the past. So there is no point in worrying over a season which did not. Which was not favorable. It happens once in 3 years. By the way, if you are in the room air conditioner industry, you should be prepared for that. And again, when we are talking about the monsoon, a good monsoon always results in a good summer season. For more than 65% of the sales are from tier 3, 4, 5 towns, and close to 70% of the sale is from aspirational middle class. And in that context, one will now look forward to a good festival season. That's where we are. Yes, good festival season, at least that's what is anticipated so far. But सर, अगला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा जो टैरिफ चेंजेस है उसके इम्पैक्ट पे मुझे बात करनी है, उसका इम्पैक्ट आपके इनपुट कॉस्ट पे। आप साइलेंट पीरियड में हैं, मैं जानती हूँ, आप बहुत डिटेल्स मुझे नहीं दे पाएंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी है इसको लेकर, लेकिन इनपुट कॉस्ट में सर पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स जो सोर्स होते हैं चाइना से, अगर उसका पूरा उसकी तस्वीर अगर आप मुझे बता सकें।
So the tariff issues came to light, in India, in Trump 2.0. But as far as the air conditioner industry is concerned, we have been facing this even in 2021. For example, non-tariff barriers on air conditioners or air conditioning components came into being at that particular point of time. And we simultaneously make in India PLI happen, so it is getting localized. Having said that, there are components which the industry is still dependent on China. Say, for example, the compressors or copper. And what we are doing, we are managing by pre-buying in certain cases. We are managing by working with the local vendors in getting it rapidly localized. Say, for example, copper is getting localized very fast. By 2028, I think the industry will be self-reliant in all respects. In the meanwhile, it is clear you have to battle it out. It can be magnets, it can be microprocessors, it can be compressors. Somewhere there is an import restriction, somewhere there is a supply chain constraint that you are not getting the material, and the players who had invested here due to FDI restrictions may not be able to expand. So supply chain is a boardroom subject. It is closely being monitored at the highest level. As of now, if you ask me, I don't think there is a problem. And one has learned to plan in advance and cope with these issues. There is absolutely no problem. Whether this will be a no problem situation forever, I am not very sure. You have to keep revisiting this subject once in 6 months to figure out how you can localize, what kind of alternate sources will be there, and at what prices you should be able to play. Now, the principle Blue Star adopts is, if there is an input cost hike, we pass on the prices to the consumer. If it comes down, we adjust the prices downwards. As of now, prices are stable. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें समय दिया और दर्शकों से बातचीत की. थैंक यू. Thank you. Thanks a lot. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से जुड़ते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट. और विवेक, हम ब्रेक पर गए और ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से बातचीत हुई है. हालांकि साइलेंट पीरियड है तो बहुत सारी बातचीत नहीं कर पाए हैं. कुछ चीज़ें जो कि वाकई रेड फ्लैग के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर अर्ली मॉनसून का एक इम्पैक्ट जिस पर हमने बातचीत की है, और बाकी ट्रेड सिनेरियो को लेके जो अभी भी रेड फ्लैग्स बने हुए हैं. बताइए आपका व्यू क्या बनता है इस पर्टिकुलर काउंटर पर. तो कविता, यही सिमिलर व्यू रहेगा कि जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, 9 तारीख को एनीवे टैरिफ का जो किस्सा है वो बाहर निकल के आ जाएगा, क्या का होता है करके. उसके बाद में क्लैरिटी आ जाएगी बाजार में और पता चल जाएगा कि इस सेक्टर को भी क्या इफेक्ट करने वाला है, पर्टिकुलरली कॉपर प्राइसेस वगैरह. तो सिर्फ 2 दिन का मामला हो रहा है, वेट करके देखना चाहिए, पहली चीज. और ओवरऑल आप अगर कंपनी को देखो तो देखिए, जो एसी सेगमेंट है, एयर कंडीशनिंग सेगमेंट है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है, इन द सेंस सेकेंड बड़ी कंपनी है. और आप अगर इसका क्वार्टरली नंबर्स भी आप अगर देखो तो कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए आया है. तो इसका जनरली क्वार्टरली नंबर्स आप अगर मार्च क्वार्टर देखो तो सबसे ज्यादा रहता है पिछले कई सालों में, और सेकेंड हाईएस्ट सेल्स नंबर्स रहते हैं जून क्वार्टर में, तो जो अभी अभी खत्म हुआ है. तो अब इस क्वार्टर का नंबर्स कैसे आएगा ये भी बाजार ओवरऑल देखना पसंद करेगा. तो मुझे लगता है कि स्पेस बहुत बढ़िया है. और थोड़ी देर पहले हम लोग कंजम्पशन स्टोरी की बात कर रहे थे, तो ये भी एक कंजम्पशन स्टोरी में आता है. ठीक है, बारिश थोड़ी ज्यादा कम ये तो चलते रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू है, ऐसा हो गया है कि अब खाली विंटर नहीं, अब सॉरी खाली समर नहीं, विंटर में भी एसी चलना चालू हो गया है. मतलब चेन्नई में तो हम लोग पूरे साल चलाते हैं, ये हालत है. तो ओवरऑल ठीक लग रहा है मुझे लगता है कि ऑन टिप्स ये कंपनी भी अच्छी रहेगी. और जैसे मैंने कहा, खाली 2 दिन आप वेट करके देख सकते हो कि टैरिफ जो क्या ट्रीटी साइन होती है या फिर क्या अग्रीमेंट साइन होता है यूएस के साथ, तो उससे इसका आपको आगे चल के पता चलेगा. और एक और चीज है, जो चाइना से प्रेशर आ रहे हैं, चाहे वो कुछ गैसेस है, रेयर मैग्नेट है,
थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया था, मुझे लगता है कि उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इस सेगमेंट में आके रखा है। तो ये सॉर्ट आउट होते हुए लगेगा आपको 2-3 महीने ओवरऑल, तो बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है। इसी के साथ शुक्रिया आपका।